Welcome to VLearn. This is session 1 of System Analysis and Design. Today we are going to cover different topics like what is system, system analysis and system approach, characteristics of a system, types of a system development life cycle, and the role of system analyst in the entire system development and life cycle. So let's start with the topic that what is system? An integrated set of interoperable elements, each with explicitly specified and bounded capabilities working synergetically. Means system is basically a collection of different components. These components are working synergetically. Synergetically means whose sum total is more than the individual energy level. And when the different component they collectively work together in a synergetical way, then they basically satisfied a mission of the organization, or some operational needs are satisfied when the people are or the different components are working in a system. Every system requires an operating environment with a specified outcome and the probability of success. सिस्टम बनाने का बेसिक मतलब क्या है कि आप एक पर्टिकुलर आउटपुट चाहते हैं और उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट आउटपुट को अचीव करने के लिए यू हैव टू सेट अप ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट फॉर द सेम so that ultimately success can be achieved. It means developing a system is you are developing an environment for the success of a particular mission. Next comes system analysis and system approach. The term analysis refers to breaking down a product or system or event etc. into its component so that each individual constituent is better understood. So जब हम एनालिसिस की बात करते हैं तो इट मीन्स हम बात कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट की, किसी सिस्टम की या किसी इवेंट की जो कि कलेक्टिवली बना हुआ है डिफरेंट कंपोनेंट से, और उन सबको इकट्ठा इसलिए रखा गया है ताकि हम उन चीज़ों को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकें. सिंथेसिस ऑन द अदर हैंड इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द आइडियाज़ इनटू ए कॉम्प्लेक्स होल. जब हम बात करते हैं सिंथेसिस की, इट मीन्स इट इज़ द कलेक्टिव एफर्ट टू सॉल्व ए कॉम्प्लेक्स वर्क. डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज़ अप्लाई किए जाते हैं सो दैट हम एक मटेरियलिस्टिक आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकें. वंस द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आर क्लियरली अंडरस्टूड इन द एनालिटिकल स्टेज, देयर कलेक्टिव आउटकम इज स्टडीड इन द सिंथेसिस स्टेज. नाउ अगर आपको एक सिस्टम बनाने को बोला जाए एंड सिस्टम इज बेसिकली द सोल्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, आपको इस टाइप से याद रखना है एस फॉर सिस्टम एंड एस फॉर सोल्यूशन. एक सिस्टम डेवलप करने का बेसिक इंटेंशन क्या होता है? इट मीन्स टू डेवलप द सोल्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम. इफ पी फॉर प्रॉब्लम इज देयर देन एस फॉर सिस्टम इज डेवलप्ड टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. नाउ इफ यू आर गोइंग टू डेवलप अ सिस्टम, तो आप क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स उसमें होने चाहिए और कैसे उसको बनाया जाता है सिस्टम को, अगर वो बनता है तो उसकी क्या क्या फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू कवर in the further part. First one is, now we are going to cover the characteristics of a system. The first characteristic of any system are, the first one is organization. System बनाना it's not a one man show. एक अकेला पर्सन पूरे सिस्टम को डेवलप नहीं कर सकता, और अगर डेवलप कर सकता है तो चला नहीं सकता, अगर चला सकता है तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता. इट मीन्स अगर हम डिफरेंट लेवल पर भी सोचते हैं तो सिस्टम इज अल्टीमेटली द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स और डिफरेंट पर्सन और डिफरेंट सर्विसेज और डिफरेंट like working models. So first characteristic of any system is organization. It means structuring. There must be a proper structuring as well as ordering in terms of different manpower and in terms of the hierarchy. It is the arrangement of component that helps to achieve objectives like the hierarchical relationship within the organization. जब तक ये ट्री लाइक रिलेशनशिप हमें क्लियर नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पर सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, सो हायरार्किकल रिलेशनशिप सेट करना इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज द प्राइम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी सिस्टम. इट मीन्स हायरार्किकल रिलेशनशिप मीन्स everybody is aware where he or she is, what is their role of responsibilities, what are the things that comes under them, and how the data will be flow in a
particular system. So it is being said in most of the books, बहुत सारी बुक्स में ये बात बोली गई है कि अगर आप एक अच्छा सिस्टम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले फ्लो ऑफ डेटा को मेंटेन करना पड़ता है. अगर फ्लो ऑफ डेटा किसी सिस्टम में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में सही है, इट मीन्स वहाँ कभी 80% प्रॉब्लम वहाँ पर आएंगी ही नहीं. राइट. नेक्स्ट वन, interaction. Another important component of any system is the interaction. Interaction refers to the procedure in which each component function with other component of the system. हर एक component की दूसरे component के साथ कहीं ना कहीं relationship है, interaction है, dependency है. For example, advertising with the sales. जो रिश्तेदारी advertising department की with the sales department interaction करते हैं. सेल्स में ये होता है कि आपको क्या पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसकी सेल करवानी है. एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट उसका पूरा उस एड का पूरा मेकअप करता है विद द हेल्प ऑफ सेल्स टीम, सो दैट द थिंग्स कैन बी अचीव, दैट प्रोडक्ट और सर्विसेज कैन बी सोल्ड आउट. और जो भी हम पैकेज बेचना चाह रहे हैं कस्टमर को, वो बेचा जा सकता है. बट एक अच्छी एडवर्टीजमेंट के सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट एज वेल एज सेल्स डिपार्टमेंट दे वर्क विद ईच अदर. सिमिलरली पेरोल विद पर्सन. पेरोल डिपार्टमेंट क्या करता है? पेरोल डिपार्टमेंट पर्सन की सैलरी प्रिपेयर करता है, उसकी सैलरी स्लिप जनरेट करता है. बट सैलरी स्लिप अल्टीमेटली किससे रिलेटेड है? विद द पर्सन. सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन. और अगर हम एक लेमैन लैंग्वेज में कहें तो देयर विल बी अ रिलेशनशिप. रिश्तेदारी होनी चाहिए दो कंपोनेंट्स के बीच में या दो डिपार्टमेंट्स के बीच में, सो दैट हम उस चीज़ को पूरा कर सकें. इसी टाइप से सीपीयू इंटरेक्ट विद दैट ऑफ द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सो अगर हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइस और सीपीयू के बीच में एक प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं होगा, देन द थिंग्स कैन नॉट बी डन. राइट. सो दिस इज इंटरेक्शन इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी सिस्टम. नेक्स्ट वन इज इंटरडिपेंडेंसी. इट मीन्स द कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर सिस्टम डिपेंड ऑन वन अनदर. ठीक है. दे आर राइट, they are coordinated and linked together in a planned way to achieve an objective. अगर हम बात करते हैं सिस्टम की, इट मीन्स इट्स अ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट, जैसे कि अभी तक आपको थोड़ा ब्रीफ मिला है इस चीज़ का. बट ये जो कंपोनेंट आपस में जुड़े होते हैं, दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ए स्पेसिफाइड प्लान. दे आर लिंक्ड टुगेदर इन ए प्लान्ड वे टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव. सपोज कीजिए आप कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स खरीद के लाए हैं, मदरबोर्ड, रैम चिप्स, लाइक बसेस, डेटा बसेस एंड ऑल दिस, और आपने सीधा उसको लिया और टेबल पे रख दिया. तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद ही चलना शुरू हो जाएंगी. सो इट मीन्स हम जब सिस्टम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो हमें उन सारे कंपोनेंट्स को, वेदर इट्स मदरबोर्ड, डेटा बस, रैम चिप्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं, आईसीज जो हैं, दे हैव टू बी सेट अकॉर्डिंग टू ए प्लान, जिसकी वजह से हमें सारी वायरिंग सेट करना पड़ेगा, पूरा सर्किट बनाना पड़ेगा, पूरा कन्फिग्रेशन अचीव सेट करना पड़ेगा. देन वी आर एबल टू डेवलप, we are able to get the services from that particular computer system. So means interdependency is another important characteristics of a system. Next one is integration. It is concerned with how a system is tied together. It means parts of the system work together within the system. डिफरेंट कंपोनेंट जो सिस्टम के हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ काम करते हैं, इंटीग्रेटेड होकर करते हैं, कलेक्टिव वे में काम करते हैं, बिकॉज दे आर वेल रिलेटेड अमंग ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं. दैट टाइटनेस ऑफ कंपोनेंट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ इंटीग्रेशन. राइट. तो अ सिस्टम मस्ट बी वेल knitted for getting the purpose of integration. Another important characteristic of any system is that हर वो पर्सन जो इस सिस्टम का पार्ट है, इस सिस्टम को यूज़ कर रहा है, उन सब के एक कॉमन और सेंट्रल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता कि एक पर्सन का इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव कुछ और है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कुछ और है, तो दे कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस बेसिकली. राइट. सो व्हाट यू नीड टू डू बिफोर डेवलपिंग अ सिस्टम, यू हैव टू सेट अ सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम, और उस सेंट्रल ऑब्जेक्टिव को कॉमन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सिस्टम. ऑब्जेक्टिव में बी रियल और स्टेटेड. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यूजर मस्ट बी अवेयर अबाउट द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव इन एडवांस. और इसको कम्युनिकेट करना, इट इज द responsibility of that key person who is the actually whole sole proprietor of the entire system.
सो सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए दैट ऑब्जेक्टिव मस्ट बी कम्युनिकेटेड एट डिफरेंट लेवल टू द एंटायर टीम, so that the ultimately we can achieve that target or that objective. Now further we are talking about the different types of system: physical or abstract system. It is tangible items that may be static or dynamic in operation. Example: physical part of the computer is static where a program computer is a dynamic system. अब हम जो ये जो systems की बात कर रहे हैं इसमें हमारे अभी हमने दो पार्ट कवर किए हैं, स्टैटिक सिस्टम एंड डायनामिक सिस्टम. स्टैटिक सिस्टम इज समथिंग अ काइंड ऑफ फिक्स्ड काइंड ऑफ सिस्टम लाइक फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. और दूसरे की हम कौन सी बात हमने कौन सा कंसिडर किया है, दैट इज डायनामिक सिस्टम, दैट इज द रन टाइम, दैट इज इन मोशन, राइट. सो एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम आर द कंसेप्चुअल और नॉन फिजिकल एंटिटीज विच मे बी एज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एज ए फॉर्मूला ऑफ द रिलेशनशिप among the set of variables or models. जब हम एक एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम की बात करते हैं तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ हाइपोथेटिकल काइंड ऑफ सिस्टम, एक कंसेप्चुअल सिस्टम, अ ड्रीम अबाउट सिस्टम जिसको हम सोचते हैं और उसके रिगार्डिंग कुछ रिलेशनशिप निकालते हैं डिफरेंट मॉडल्स के बीच में या डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में, एंड द यूज ऑफ मॉडल्स मेक्स इट ईजियर फॉर द एनालिस्ट टू विजुअलाइज द रिलेशनशिप इन द सिस्टम अंडर स्टडी. और इन वेरिएबल्स की मूवमेंट से ही हम विजुलाइज कर सकते हैं या अंडरस्टैंड कर पाते हैं पूरे सिस्टम को उसकी स्टडी के अंडर में, राइट. सो एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सिस्टम इन द करंट सिनेरियो. अनदर कैटेगरी ऑफ द सिस्टम इज दैट इज ओपन और क्लोज सिस्टम. व्हाट इज ओपन एंड क्लोज सिस्टम? एन ओपन सिस्टम इज कंटिन्यूअली इंटरैक्ट विद इट्स एनवायरमेंट. इट रिसीव्स इनपुट फ्रॉम एंड डिलीवर्स आउटपुट टू द सिस्टम. जब हम बात करते हैं ओपन सिस्टम की तो एक प्रॉपर इंटरेक्शन होता है हमारे सिस्टम का हमारे एनवायरनमेंट के साथ. ये कुछ डेटा आउटपुट से, कुछ डेटा एनवायरनमेंट से रिसीव करता है और कुछ आउटपुट की फॉर्म में जनरेट करता है. एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी सिंस इट मस्ट अडॉप्ट टू द चेंजिंग डिमांड्स ऑफ द यूजर. दूसरी साइड पे अगर हम बात करते हैं एक क्लोज सिस्टम दैट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट. In reality, completely closed systems are rare. Another category of the system is deterministic system or probabilistic system. Deterministic system को अगर हम नटशेल में समझे, एक लेमन लैंग्वेज में समझें, तो deterministic system वो सिस्टम होता है जिसके बारे में आप कुछ predictions निकाल पाते हैं, right? For the sake of definition, we are going to cover that a deterministic system is one in which the occurrence of all event is perfectly predictable. आप कुछ पैरामीटर्स के बेसिस में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को प्रिडिक्ट कर पाते हैं डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम के अंडर. इफ वी गेट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम स्टेट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम देन द नेक्स्ट स्टेट इन इज प्रिडिक्टेड. अनदर कैटेगरी ऑफ द सिस्टम इज प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम. Probabilistic system is one in which the occurrence of events cannot be perfectly predicted. यानी कि अगर हम नॉर्मल नटशेल में बात करें तो डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम के जस्ट अपोजिट है हमारा प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम. एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए सिस्टम इज अ वेयर हाउस एंड इट्स कंटेंट्स. सो हमारे वेयर हाउस में क्या डेटा है, उसका क्या कंटेंट्स है, हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड, दिस इज ऑल अबाउट द आवर प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम. Further, we are going to cover some question that you have to bring, that you have to do. I think that you are able to give the answer of these questions. First one is, what do you understand by the system analysis and design? What is the role of system analyst? In this regard, you have to provide me the 10 points on each question so that we can cover the next part. Thank you.
क्यों है यार? क्या किया अभी आपने? मैंने तो एक ये